अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इस लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम किस तरह यूज करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको पीयरसन काई स्क्वायर टेस्ट भी कहा जाता है, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सबसे पहले तो ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसका मतलब है कि इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए डेटा की नॉर्मेलिटी जो है जरूरी नहीं है। तो शेप्यूरो विल्क टेस्ट या केस टेस्ट से हम जो इनोवा के लिए हमने किया था कि नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, या पेयर टी टेस्ट है, या टी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। तो इस तरह इस टेस्ट के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए नॉर्मेलिटी असिस करने की जरूरत नहीं है। वो डेटा चाहे नॉर्मल हो या स्क्यूड हो, सो इट डजंट मैटर। जरूरी बात ये है कि इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो कैटेगरिकल होंगे, यानी दोनों वेरिएबल्स कैटेगरिकल होंगी। अब काई स्क्वायर टेस्ट यूज किस लिए होता है? सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है, पीयरसन काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तब हम यूज करते हैं जब हमारा एम ये होता है पर्पस की टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है या नहीं है। So this test is used to determine either if there is a significant association between two categorical variable, or there is statistically non-significant association between two categorical variables. अगर हमारी वेरिएबल्स कैटेगोरिकल नहीं है तो फिर हम जो है ये टेस्ट यूज नहीं कर सकते, हम फिर कोरिलेशन की तरफ जाएंगे। So, a chi-square test of independent test the null hypothesis that there is no association between the two variables, and these two variables both will be categorical variables in a contingency table where the data is all drawn from one population. So, इस टेस्ट के लिए जो null hypothesis होगा, there will be x and y are independent, which means there is no association between the x and y. The alternate hypothesis that state that x and y they are dependent, which means we can also say it like that the x and y they are statistically associated with each other. There is significant statistical association between the x and y. अब हम ये चेक करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड की, हम नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करेंगे या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये कंटिजेंसी टेबल क्या चीज है? कंटिजेंसी टेबल, जिसको क्रॉस टेब भी कहा जाता है या इसको टू वे टेबल भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जब हम टेबल्स की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे कि वन वे टेबल है, टू वे टेबल है। कि वन वे टेबल जो सिंपल टेबल होता है, जबकि टू वे टेबल में अब कॉलम्स और रोज दोनों में दो वेरिएबल एट द सेम टाइम हम एक कॉलम में उसके डेटा जो है अगर हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में दो वेरिएबल्स एट द सेम एक टेबल में, so that is known as the two-way table. So these contingency tables or cross tabs are two-way tables. They are used to analyze the relationship between two categorical variables. In a contingency table, one variable is presented in the columns and the other in the rows. By looking at the distribution of one variable across categories of the other, we are able to gain a preliminary insight into the association between these variables. So this is an example of the cross tab or the two-way table. Now, in this table, in this two-way table, the one variable is the depression and the other is the physical activity. So we can see here these are the options for the depression: normal, mild mood disturbance, borderline clinical depression, moderate depression, severe depression, and extreme depression. While here the physical activity can be
divided into three. In this case, inactive, minimally active, and the high active. Now it means if the two mean there there were two persons who are without any depression, and they were inactive. They were without any physical activity, or their physical activity was very less. Similarly, if we check at this cell, which means that there was no one who was with the extreme depression, as well as he was highly active. There was no one. मैंने अब यहाँ से हमें एक अंदाजा डायरेक्ट हो जाता है कि जितनी ज्यादा जो है हाईली एक्टिव थी वो ज्यादातर नॉर्मल थी, और हाईली एक्टिव जितनी भी थी उसमें फिर माइल्ड मूड डिस्टर्बेंस से लेकर एक्सट्रीम तक कोई भी केस नहीं है। तो खैर, तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन हमारी है। अब हम आगे जाके इस एक और एग्जांपल के साथ फिर असिस्ट करेंगे कि अब जो है इन वेरिएबल्स के दरमियान जो है सिचुएशन है या नहीं है। अब ये टेस्ट हमने इस पर अप्लाई कर दिया, काई स्क्वायर टेस्ट इन दोनों के लिए। और जब हमने यहाँ पर स्टेटिस्टिकली जो टेस्ट स्पीसीज से हम ये जब असेस किया, तो द पी वैल्यू जो है इसका आया 0.001, जहाँ पे इसका अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था दैट वाज लेस देन 0.05। तो अब अगर 0.05 से नीचे होगा पी वैल्यू, से इट मीन देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। And this value, this is actually known as the x square value, or it is known as the Pearson chi-square, and this is the degree of freedom. तो आगे एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर वैल्यू भी कहा जा सकता है, विच इज सिंपली नोन एज द काई स्क्वायर वैल्यू। तो हम काई स्क्वायर वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और फिर किस तरह डिसीजन लेंगे कि हम इच जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें, या जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें। तो ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। The chi-square test of independence that allows us uh, to determine whether variables are independent of each other or whether there is a pattern of dependence between them. If there is a dependence, the researcher can claim that the two variables have a statistical relationship with each other. So now what are the steps in the application of this chi-square test of independence to assess the association between two categorical variables? हम ये hypothesis किस तरह टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए स्टेप्स। पहला स्टेप जो है दैट इज कि हम अपनी हाइपोथेसिस जो है उसको स्टेट करेंगे कि हमारे जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, दोनों हमारे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है और हमारी जो तो नल हाइपोथेसिस है, इन दोनों को हम जो है यहाँ पे स्टेट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये इस्टेब्लिश करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये कैलकुलेट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम अपना जो डी एफ है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हम डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है हम कैलकुलेटेड टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन अ टेबल, विच इज एक इसको हम क्रिटिकल वैल्यू टेबल भी कहते हैं, एक स्क्वायर टेबल भी कह सकते हैं। और फिर उसकी कंपैरिजन के बाद हम डिसीजन लेंगे, हम कंक्लूजन बनाएंगे कि इधर इसकी कंपैरिजन के बाद अब हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें, या हम अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट करें। तो सबसे पहले एक एक स्टेप को हम डिटेल से करते हैं। पहले स्टेप में क्या है कि आप अपनी हाइपोथेसिस जो है ये उसको स्टेट करें। तो हमारा नल हाइपोथेसिस है कि द टू वेरिएबल्स दे आर इंडिपेंडेंट, व्हिच मीन द टू वेरिएबल्स दे डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन ईच अदर। Alternate hypothesis would be like the two variables, they are associated with each other. There is a significant association between the two variables, and the alternate hypothesis can also be written as the two variables, they are not independent.
रिमेंबर अगेन, ये दोनों वेरिएबल जो हम बात कर रहे हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे, या हम कह सकते हैं ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। सेकंड स्टेप जो है इट इज द एस्टेब्लिशिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये अल्फा वैल्यू जो है ये पहले से स्टेटेड वैल्यू होगा, इट विल बी अ प्री डिटरमिन्ड वैल्यू। अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि दिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज द मैक्सिमम probability of rejecting the null hypothesis when it is actually true. It means type 1 error. मिसाल के तौर अगर इन केस हमने अल्फा वैल्यू जो 0.05 लिया है, वैसे तीन कॉमनली यूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है दिस इज 0.10, 0.05 एंड 0.01 ये लेते हैं। मिसाल के तौर अगर हमने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इन तीनों में से लिया है 0.05 लिया है, सो इसका मतलब है कि देयर इज 5% risk of concluding that a difference exists between there is no actual difference। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टाइप 1 एरर की जो चांस है ये 5% है, और अगर हम 0.10 ले लेते हैं तो यहाँ पे 10% चांस है टाइप 1 एरर की, एंड 0.01 पे देयर इज ओनली 1% चांस ऑफ committing the type 1 error। सो यहाँ पर कॉमनली जो यूज होता है सबसे कॉमनली दिस इज इन तीनों में दिस इज द 0.05 ये यूज होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये 95% होता है। सो हम इज्यूम करें कि इस पूरे लेक्चर में 0.05 को एज आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरा स्टेप जो हमारा था दैट इज कैलकुलेटिंग द टेस्ट स्टेटिस्टिक। So, contrast observed frequencies in each cell of a contingency table with the expected frequencies। अब expected frequency जो है ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये भी हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है जो हम कैलकुलेट जो हमारे साथ आ जाती है, यानी जिसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, या जब हम डेटा लेते हैं तो वहां से हम कलेक्ट द डेटा, तो दैट इज नोन एज द ऑब्जर्व्ड। एक एक्सपेक्टेड होता है। सो अब एक्सपेक्टेड किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये अब हम डिस्कस करेंगे। The expected frequencies represent the number of cases that would be found in each cell if the null hypothesis they were true. The variables they are unrelated. Expected frequency is the product of the row and column frequency divided by the total number of cases, and this is the equation for the calculation of the expected frequency, where RT is the row total, CT is the column total, and GT is the grand total. So अगर हम किसी एक सेल का एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है कैलकुलेट करेंगे तो उस सेल का जो टोटल रो नंबर होगा ये हम मल्टीप्लाई करेंगे उस सेल का जो कॉलम टोटल होगा उसके साथ, और फिर डिवाइड करेंगे इनको टोटल ग्रांड के साथ। This is the equation for the calculation of the x square value or the chi square value, which is equal to the summation of the O minus E square divided by the E, where O is the observed frequency and E is the expected frequency. The next step is to determine the degree of freedom, which is actually equal to the R minus 1 multiplied by C minus 1, where R is the number of rows, number of level in rows, and the C here is the number of level in columns. Compare computed test statistic against a table a critical value. The computed value of the chi-square statistic is compared with the critical value. The critical table values are based on sampling distribution of the chi-square statistic. If calculated x square is greater than x square table value, reject H naught. We will repeat this rule again and again in the upcoming slide, but remember this important point. If the calculated chi-square value
is greater than the chi-square value present in the table, then we will reject the null hypothesis. Suppose the calculated x square value is 3 and the x square value in the table is 2. Now 3 is greater than 2. So then we will reject the null hypothesis. Now we will apply all these steps on example, and we will also calculate the expected frequency. We will also calculate the degree of freedom. We will also calculate the x square value, the chi-square value, and then we will also determine what is the level of significance. And at the end, we will also decide, we will take a decision with comparison of the observed of chi-square value with the chi-square value in the critical value table. So this is our example. सबसे पहले स्टेप जो हमने कहा था कि हमारा स्टेप क्या था कि हम अपनी हाइपोथेसिस जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है, हम यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस ये कहता है, according to the null hypothesis, smoking and drinking they are independent. There is no association present between the smoking and drinking. While the alternate hypothesis would be like the smoking and drinking they are dependent. There is a significant, statistically significant association between the smoking and drinking. They both have a relationship. Now this is actually the observed frequency, or the we can say that the data which we have collected from the 180 participant. इस 180 participant में 80 जो है ये smokers थे and 100 जो थे ये non smokers थे. So ये 80 smokers plus 100 non smokers they make 180. इसी तरह इस 180 में 60 जो थी ये अल्कोहल कंज्यूम करते थे एंड 120 जो है ये अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे. सो 120 प्लस 60 दैट मेक 180. तो ये इसको कहते हैं द कंटिजेंसी टेबल, द टू वे टेबल or the cross tab. Now the two variables here, this is the alcohol consumption that is also in categorical form. Its two categories are the yes and no. Similarly, the next, the other variable is the smoking habit. So it may be the smoker and non-smoker. So both variables are categorical and they both have present in a single table. So this table is an example of the two-way table. The cross table are the contingency table. So 120 were the total non-alcoholic users, while 60 were the total number of participants who were consuming the alcohol. Similarly, the 80 were the total number of participants who were smokers, and 100 out of total 180 were the participants who were non-smokers. So now this is the observed 20, 60, 40, and 60. These four values, these are the observed frequencies. Now, how to calculate the expected frequency? According to the formula, according to the equation which we have stated earlier in the slide, here it is, the expected frequency is equal to the row total multiplied by the column total and then the grand total. इस चीज को हम वहां पे अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम स्मोकर्स और यस देखें इस प्रीवियस टेबल में, स्मोकर एंड यस 20 इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? अब इस सेल को जो 20 है, इसका जो कॉलम टोटल है वो 60 है और इसका जो रो टोटल है वो 80 है और इसका जो ग्रैंड टोटल है ये 180. तो इट मीन हमें ये वैल्यू चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 और 60 मल्टीप्लाइड बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि ये हमारा 80 जो है ये इस सेल का रो टोटल है और ये इस सेल का कॉलम टोटल है. सो 80 multiplied by 60 divided by 180 and it will be like 80 multiplied by 60 180, which make for at double hundred divided by 180 and the value is 26.67. Similarly, the next expected value for the smoker no,
तो स्मोकर नो जो है मीन स्मोकर से और वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती, सो दिस इज एक्चुअली दिस सेल की बात हो रही है। इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब इस सेल का जहां पर ये 60 लिखा है, इसका जो रो टोटल है ये 80 है और इसका कॉलम टोटल जो है 120 है। सो वी कैन से दैट 80 multiplied by 120 divided by 180 in the equation. So that will be like 80 multiplied by 120 divided by 180, and the expected value is 23.33। इसी तरह जो नॉन स्मोकर्स थे और देवर कंज्यूम करते थे अल्कोहल, तो इनका जो कॉलम टोटल हो जाएगा, ये नॉन स्मोकर्स और जो अल्कोहल कंज्यूम करते थे इनका कॉलम टोटल 60 हो जाएगा और इनका रो टोटल जो है ये 100 हो जाएगा। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 180, 100 multiplied by 60 divided by 180, and the answer will be 33.33। Similarly, जो नॉन स्मोकर्स थी और न स्मोकिंग करती थी न अल्कोहल कंज्यूम करती थी, तो इनका जो नंबर है दिस इज 60। यहाँ इसका रो टोटल जो है 100 एंड इसका कॉलम टोटल 120, सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 100 multiplied by 120 divided by 180। 100 by 120 divided by 180, and the expected value will be 66.67। अब यहाँ पे ये हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी 20, 40, 60 एंड 60। इसी की अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेके जो हमने अभी कैलकुलेट की है इस कैलकुलेशन में, तो यहाँ से हमारे हो जाएंगे सेल ए जो है 20 की जगह यहाँ पे दिस इज 20 इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये 26.67। इस तरह 60 इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड 53.33 सेल बी में दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर 40 जो है दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड इसका 33.33 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। 66.67 सेल डी का दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाज 60। अब हम यहाँ पे वो जो काई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो काई स्क्वायर वैल्यू का इक्वेशन था, ये वाली इक्वेशन, ये यहाँ पर हम इस पर हम का स्क्वायर, अब हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी मौजूद थी, हमने कैलकुलेट की है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्स स्क्वायर वैल्यू और द काई स्क्वायर वैल्यू। तो हमारा ये कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर वैल्यू जब आ जाएगा, फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फिर क्रिटिकल वैल्यू टेबल में हम स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक एक्सपेक्टेड एक स्पेसिफिक जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उस पे वैल्यू देखेंगे। अच्छा, ये क्यों जरूरी है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्योंकि जब हम टेबल पे जाएंगे तो टेबल हमारा जो होगा, यहाँ पे हमने एक कंटिजेंसी, ये हमारा एक स्क्वायर टेबल है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम यहाँ से पहले ये तो इस डिटरमिन करेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डीएफ क्या है। इसके बाद जो है हमारा पी वैल्यू जो है ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये 0.05 है, 0.2 है, 0.10 है, या जो है 0.05 है, 0.02 है, 0.01 है। तो यहाँ पर हम चूंकि हमारा ये 0.05 जो है ये हमने लिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे और फिर इस टेबल में देखेंगे। सो दीज आर द एक्चुअल वैल्यू इन द एक्स स्क्वायर, और हमारा जो अभी एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर इस टेबल की जो एक्स स्क्वायर वैल्यू से ये ज्यादा होगा तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमने कर दिया। नाउ ये सेल ए, सेल बी, सेल डी, इसका ऑब्जर्व वैल्यू जो ए था 20, 16, 14, 16, दैट वाज द टोटल 180। Similarly, the expected frequency for the cell A was 26.67 and so on, and the grand total was 180। now अगर हम O minus E कर ले, so 20 minus 26.67, that will make minus 6.67, 6.67, इन सब का ये 6.7 आ जाएगा अगर हम इसमें ये माइनस करें। फिर हम इसका O माइनस ई स्क्वायर ले लेंगे तो 6.67, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें सो दैट विल बी इक्वल टू द 4
0.49, इसी तरह इन सब का ये एक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है हम इसको जो ई है एक्सपेक्टेड उस पर डिवाइड, अब हमारा ये जो एक्सपेक्टेड है इस पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू 26 है, तो अगर हम इस 4.49 को डिवाइड करते हैं 26 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1.67। इसी तरह इस इक्वेशन का 1 ओ माइनस ई स्क्वेयर विच इज ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे इनटू द एक्सपेक्टेड वैल्यू, so it will be the 0.83। सिमिलरली इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे ऑन द 33.33, सो द वैल्यू विल बी 133। इसी तरह इस o माइनस ई स्क्वेयर को 4.49 को हम डिवाइड करेंगे ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू e which is 66.67 and that will be the 0.67। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन पे जाएं तो यहाँ पे इक्वेशन पे जो हमारा ये है इस इट मीन समेशन, यानी हम जब ओ माइनस जो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड, फिर इन सब का हम क्या लेंगे, समेशन, और जो वैल्यू आ जाएगी एडिशन ऑफ ऑल दिस दैट विल बी द chi स्क्वायर वैल्यू। तो इसी तरह हम इन सब को ऐड करेंगे, समेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, एक समेशन ऑफ द ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड कर लें, सो ये आएगा हमारा 4.5। ये हमारा कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू है, या एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है, सो काई स्क्वायर वैल्यू हमारा आ गया 4.5। उसके बाद जो है ये हमारा इक्वेशन था, और हमारा एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये आया 4.5। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। सो इससे पहले जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो द इक्वेशन वाज r-1 multiplied by c-1, where r is the number of level in rows and the number of column in rows is the c। According to this equation, इस एग्जांपल में जो हमारा ये अल्कोहल का ये इस टेबल में हमारा ये हो जाएगा, हमारे कॉलम जो है ये 2 है और हमारे रोज भी 2 है। सो c-1 मीन द नंबर ऑफ कॉलम्स मीन 2-1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज, they were also 2, so it mean 2-1 multiplied by 2-1 is mean 2-1 is equal to 1, and here is also 1, so the degree of freedom is 1। इस टेबल में अगर हम देखें, so there is just 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns, sorry। So now the calculated degree of freedom is 1. A rejection region at 0.05 and the degree of 1 is 3.84। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्चुअली दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू टेबल, जो टेबल भी मौजूद है। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हमने पहले से लिया था 0.05। अब हम जाएंगे यहाँ पे डिग्री जो हमारा टेबल है उस पे चले जाएंगे। तो टेबल में देखिए यहाँ पे हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये इसको टेबल आप एक्स स्क्वायर या का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्चुअल वैल्यू इस टेबल इसका है 3.84 एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 3.84। और हमारा जो कैलकुलेटेड का स्क्वायर वैल्यू था वो था 4.5। अब 4.5 जो है इट इज ग्रेटर देन 3.84, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे, which mean that there is dependence of alcohol drinking and cigarette smoking, या in other words हम इस तरह कह सकते हैं कि there is a significant association between the alcohol consumption and the smoking। सो नाउ ओवरऑल अगर हम इसको थोड़ा सा जो है समराइज कर ले, या थोड़ा सा आप लोगों के लिए याद रखने के लिए थोड़े से हम पॉइंट्स रिपीट कर लें। सो इफ द कैलकुलेटेड chi स्क्वायर वैल्यू is greater than the critical value from the chi-square distribution table, इसको एक स्क्वायर टेबल या chi square टेबल जो है कहा at a specific degree of freedom and significance level, then you reject the null hypothesis। This is a rule of
the hypothesis testing in through the chi-square test of independence. This implies that there is a statistically significant association between the two categorical variables. हमारे इस case में there was smoking and alcohol consumption. So in this case we can say that there is a statistically significant association between the smoking and alcohol consumption. अब ये दोनों variable जो थे ये categorical या qualitative variables थे. In simpler terms, the observed frequency are significantly different from the expected frequency and the variables they are not independent of each other. Now, key points to remember. Null hypothesis, which means assume no association between the variables, they are independent, and the alternate hypothesis that will state assume there is an association between the two categorical variables. The decision rule will be like if the chi-square value calculated is greater than the chi-square value in the critical table, then reject the null hypothesis. It means there is significant association in the two variables under study. And if the calculated chi-square value is less than or even if it is equal to the uh, chi-square value in the critical table, then we are failed to reject the null hypothesis, and it means there is no significant association between those two variables under the study. So that was the end of today's session. Thank you so much to all of you. Have a nice day.